اٹارنی جنرل نے جو چاروں کی چاروں جو پریس کی ابتدا تھی اس کو نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ پوری طرح انہوں نے اس کو انڈورس کیا، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حکومت کی کمٹمنٹس اور ان کی جو باشگاف الفاظ میں ہاں ملانا اس کی کیا قدر منزلت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن آج عدالت عظمیٰ میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنی ان کمٹمنٹس کو آنر کریں گے۔ میں سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر کا اور ان کے تمام ان کے زعماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ پٹیشن انہوں نے داخل کی۔ جو عدالت عظمیٰ نے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شریک جو جج تھے انہوں نے جو آج فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے لائرز ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استدعا تھی کہ اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے انحراف ہے۔ یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس، اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس شروع ہو جائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے باشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں، پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے، پوری قوم ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے۔ لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے۔ اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے۔ ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں، ضیوف ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو والہانہ استقبال کریں گے۔ لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں، میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے، جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ روشن ڈالیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا۔ بار کاؤنسلز جو پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہیں اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے، قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے۔ جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں، اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق
का दफा करने वाला इदारा है, सारे जमातों की क़यादत के लेवल पे हम ऑब्जर्वर्स के तहत इधर बैठे रहे जब हमारा लॉयर्स ने अपने केस सामने रखा। और जो पॉइंट्स मैं अवाम को और मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। पहले इन्होंने हमारा अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन बाद पार्लियामान के लॉजेस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की और मेंबर्स को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। जब कुछ मेंबर्स ने अपना पनाह के लिए सिंध हाउस को चूज़ किया कि वहाँ एटलीस्ट सूबाई हुकूमत का भी पुलिस होगा तो उनका थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो फिर सिंध हाउस पे और पार्लियामान के मेंबर्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाया गया और फिर सिंध हाउस पे और वफाक पे एक हमला किया गया, जमहूरियत पे हमला किया गया और दहशत फैलाने की एक और कोशिश थी। उस कोशिश के बाद हुकूमत ने स्पीकर से आइन तुड़वाया। हमारा बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। स्पीकर ने सेशन को 14 दिन में ना बुला के पहला आइन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया है। बाकी जो कानूनी और आइनी पॉइंट्स हैं कि मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील है सुप्रीम कोर्ट से, और हमें भी उम्मीद है कि जो भी हो हुकूमत तो आइन तोड़ सकता है, स्पीकर तो आइन तोड़ने उसने दिखा दिया है कि वो आइन तोड़ सकता है, मगर हमारा आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि हमेशा वो किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आइन का साइड लेंगे, कानून का साइड लेंगे और जमहूरियत का साइड लेंगे। किसी सियासी जमात का वो कोई पोजीशन नहीं लेंगे। और मैंगल साहब, अब मैं ज़रा मैंगल साहब को मैंगल भाई साहब नहीं मैंगल साहब की बात करें, क्या कर रहे हैं? शुक्रिया मैं साहब, क्योंकि इस बारे में तफसीलन तो मेरे ख्याल में हमारे लॉयर जी जो आइनी और कानूनी जो मसाइल हुए हैं वो उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक ये हकीकत है कि जिस आइन की पासदारी हुकूमत को करनी थी, जिस आइन पर अमल दरामद हुकूमत को करना था, या जिस आइन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो हुकूमत की करनी थी, हुकूमत के बजाय हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के वकलाओं ने इसका एहसास करते हुए ये पटिशन दाखिल की और उस पटिशन के तहत हम पॉलिटिकल पार्टियों को जब नोटिस जारी किए गए तो हम एज ऑब्जर्वर आके हमने यहाँ पर देखा और उम्मीद ही यही है कि जो आज भी हमने कार्रवाई देखी कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आइन की पासदारी करते हुए वो आइनी और कानूनी फैसले किए जाएंगे। मज़ीद मेरे ख्याल में हमारे जो लॉयर्स हैं वो उस पर मज़ीद तफसील से बात मैं करें। जनाब आज़म नज़ीर तार साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आपको आज जो कार्रवाई हुई है वो लीगल पार्लियामेंट में आपको बता दें, और इसके बाद कोई सवाल का जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि ये मामला अब सब जुड़े हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड ज़रा पहले एक क्लैरिटी आ जाए, जैसे कि सियासी रहनुमाओं ने भी शुक्रिया अदा किया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया कि ये एक अवामी मुफाद का मामला था जिसमें फ्लोर मिला कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी। 3 चीज़ें जो आज तय हो गई हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के अफर्मेटिव जवाब के बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। नंबर 1 जो एप्रीहेंशन थी MNAs की कि MNAs को रोका जाएगा, जो ये कहा जाता था कि वो 10 लोगों में से 10 लाख में से गुजर के आएंगे और जाएंगे। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया और अपनी एश्योरेंस रिकॉर्ड करवाई है, जिसे कि नोट भी किया कोर्ट ने कि किसी इलेक्टेड MNA को नहीं रोका जाएगा असम्बली का इजलास अटेंड करने से। 1
नंबर 2, किसी MNA को जिस पार्टी से भी हो नहीं रोका जाएगा राइट ऑफ वोट से कि वो वोट दे। तीसरी बात, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असेंबली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए IG इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूज़ात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब ड्यूडस मैटर है। आपका पिटीशन है, आप खुद अगर कुछ बात करना चाहें सर। नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है वो होगी, लेकिन ये रेफरेंस जो है ये रेफरेंस चलता रहेगा। इस रेफरेंस का अगर कोई फैसला होता है इन दैट इवेंचुअलिटी क्या रिवर्स हो सकता है वो या नहीं? नहीं कोई बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकबर डोगर साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी अदारे को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसे चलते रहना चाहिए और स्पीकर असम्बली को आइन और कानून की रूह के मुताबिक आर्टिकल 95 के मुताबिक जो 7 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और 3 दिन के बाद इस पीरियड में इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह भी मैंने बात की और जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूम प्रोवाइड करेगा कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो कल को आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी रुजू किया जा सकता है। इसलिए हेवंस फॉल करें, आइन का जो आर्टिकल है, जो आइन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने पहले देखा यहाँ डिक्टेटर्स जो हैं वो आइन को पामाल करते रहे। ये एलिगेशंस आए कि अदालतों के ज़रिए, जजमेंट मेड लॉ के ज़रिए आइन की प्रोविजंस को रिडंडेंट किया गया और आज पार्लिमान में आप देखें आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज़ आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का, मैंने इसलिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने कार्ड रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहाँ के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफ़ी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वायरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूँकि
ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है, इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक फरमाई, लेकिन हमारी जो उन्होंने कहा कि आपकी ये सबमिशन जो है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच।